Assalamualaikum, good morning. Class 4, this is Ms. Rida Rajab from Onwala's English Grammar School. It's our maths class. Take out your copies. Now, maintain the page by using blue color. Our question number 1 is table of 2. Write the question with blue color. Left one line from the upper side and left one line from the left side. Write the table by using pencil. 1 times 2 is 2, 2 times 2 is 4, 3 times 2 is 6, 4 times 2 is 8, 5 times 2 is 10, 6 times 2 is 12, 7 times 2 is 14, 8 times 2 is 16, 9 times 2 is 18, 10 times 2 is 20. Do your work neat and clean. Write all the numbers in the boxes. After completed, read it. So class 4, our next question is question number 2. Table of 3, maintain the page by follow the previous instructions. Table of 3, 1 times 3 is 3, 2 times 3 is 6, 3 times 3 is 9, 4 times 3 is 12, 5 times 3 is 15, 6 times 3 is 18, 7 times 3 is 21, 8 times 3 is 24, 9 times 3 is 27, 10 times 3 is 30. Do your work neat and clean as shown in your screen. So the question number 4 is table of 4. Question number 3 is table of 4. 1 times 4 is 4, 2 times 4 is 8, 3 times 4 is 12, 4 times 4 is 16, 5 times 4 is 20, 6 times 4 is 24, 7 times 4 is 28, 8 times 4 is 32, 9 times 4 is 36, 10 times 4 is 40. So our next question is table of 5. 1 times 5 is 5, 2 times 5 is 10, 3 times 5 is 15, 4 times 5 is 20, 5 times 5 is 25, 6 times 5 is 30, 7 times 5 is 35, 8 times 5 is 40, 9 times 5 is 45, 10 times 5 is 50. The next is table of 6. Maintain the page by follow the previous instructions. Write the question with blue color and do your work with pencil in neat and clean writing. 1 times 6 is 6, 2 times 6 is 12, 3 times 6 is 18, 4 times 6 is 24, 5 times 6 is 30, 6 times 6 is 36, 7 times 6 is 42, 8 times 6 is 48, 9 times 6 is 54, 10 times 6 is 60. The next is table of 7. 1 times 7 is 7, 2 times 7 is 14, 3 times 7 is 21, 4 times 7 is 28, 5 times 7 is 35, 6 times 7 is 42, 7 times 7 is 49, 8 times 7 is 56, 9 times 7 is 63, 10 times 7 is 70. Learn all the table. So the next is definition of triangle. Define triangle. Write the question by using blue color. Maintain the page and follow the previous instructions. Draw the shape of triangle by blue color. Definition. This is our triangle. Tri means 3. So, triangle means 3 angles. It has 3 sides and 3 vertices. डिफाइन ट्राइंगल मीन्स कि ट्राइंगल को डिफाइन कीजिए. ट्राइंगल की डेफिनेशन बताइए कि ट्राइंगल क्या होता है, कैसा होता है, ट्राइंगल किस वर्ड से बना है. सो दिस इज अ ट्राइंगल. जो आपको ऊपर पिक्चर या ऊपर शेप बनी हुई नज़र आ रही है उसे कहते हैं हम ट्राइंगल. आप सबने स्टार्ट से ही पढ़ा होगा कि ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं और 3 वर्टाइसेस होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 वर्टाइसेस होते हैं. सो Tri means 3. Tri means 3 and angle. So triangle means 3 angles. अगर आप ट्राइंगल को रोटेट भी करेंगे तो वो ट्राइंगल ही रहेगा हर एंगल से. और इसके 3 साइड्स एंड 3 वर्टाइसेस होते हैं. दैट्स वाई हम इसे कहते हैं ट्राइंगल.
सो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अभी तक हमने सिर्फ ट्राइंगल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लिखेंगे और पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कि ट्राइंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। सो अब जो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है उसकी जो हेडिंग है वो लगाएंगे बाय यूजिंग ब्लू कलर। सो नंबर 1 इज EQUI equi, LA equilateral, equilateral triangle, equilateral triangle. Number 2 is ISOCELES, isosceles triangle. Number 3 is SCALE and scalene triangle, equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle. अब पहले हमने ट्राइंगल की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद हमने उनके टाइप्स लिखे। अब उसके जो टाइप्स हैं हम उनको डिफाइन करेंगे। सो द नंबर 1 इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, a triangle that has 3 equal sides is called an equilateral triangle. वो ट्राइंगल जिसके 3 साइड्स इक्वल होते हैं उससे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल आपने देखा होगा, किसी ट्राइंगल के 2 कॉर्नर्स 2 साइड सेम होते हैं, किसी का 1 साइड सेम होता है, 2 साइड सेम होते हैं और एक 3rd साइड होता है उसके सेम नहीं होता। बट जो वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे उसे क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। रिपीट विथ मी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। गुड। सो isosceles triangle, a triangle that has 2 equal sides is called isosceles triangle. वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है उसे हम कहते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। जिसकी 3 साइड इक्वल होंगी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी वो आइसोसेल्स ट्राइंगल। रिमेंबर इट, याद रखिएगा। नंबर 3 इज स्केलेन ट्राइंगल, a triangle with no equal side is called scalene triangle. वो ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड, एक भी साइड अगर इक्वल नहीं होगी उसे हम कहेंगे स्केलेन ट्राइंगल। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी आइसोसेल्स ट्राइंगल, और जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होगी वो कौन सा होगा क्लास 4? स्केलेन ट्राइंगल। वेरी गुड। सो द नेक्स्ट इज राइट द टाइम एंड फिगर। हमें टाइम बताना है बट फिगर में। A 11:30, 11:30 कितने बजे होते हैं? 11:30। B 2:15, 2:15 इज इक्वल टू 2:15 मतलब कि 2:15। 8:45, क्वार्टर कहते हैं पौने, जो हम 8:45 8 4 and 45 minutes, 8:45। D 6:45, 6 4 and 45 minutes। E 7 o'clock मीन्स के 7 बज रहे हैं। F 8:30, 8:30, 8:30। G 1:15, 1:15 मीन्स 1:15। H 10 o'clock पूरे 10 बज रहे हैं। I 4:45 मीन्स पौने 5 बज रहे हैं, तो 4 hour and 45 minutes। J 1:45 मीन्स के पौने 2 हो रहे हैं, 1 hour and 45 minutes। Missing signs, write the right missing signs। So यहाँ पे हमारे पास आपको आंसर्स भी दिए गए हैं और नंबर्स भी दिए गए। अब हमें ये बताना है कि इन नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है सो ये आंसर आया है, डिवाइड किया है सो ये आंसर आया है, ऐड किया है या तो सब्ट्रैक्ट किया है।
The number 1 is 5 dash 5 equals to 25. It's mean अगर हम 5 को 5 में प्लस करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे 10. So wrong answer. माइनस करेंगे तो वो हो जाएंगे 0. Wrong answer. डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 1. ये भी wrong answer. So 5 multiplied by 5 equals to 25. 5 times 5 is 25. So इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस की सारे प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है एंड देन आपको इसके आंसर्स अपने स्क्रीन में से चेक करने हैं. सो द नंबर 2 इज 3 times 4 is 12. Number 3 is 41 plus 4 equals to 45. Number 4 is 60 minus 10 equals to 50. Number 5 is 5 is 6 times 5 is 30. So class 1, maintain the page by using blue color. Write the question and draw a line with the help of blue color. Must show sequence number and date on every page. So our next question is dosing table. Dosing table. 4 times 4 is 16. 6 times 7 is 42. 9 times 5 is 45. 7 times 5 is 49. 8 times 5 is 40. 6 times 0 is 0. 9 times 9 is 81. 0 times 8 is 0. 4 times 8 is 32. 3 times 7 is 21. 2 times 5 is 10. 10 times 7 is 70. And 9 times 10 is 90. Do your work neat and clean. So class 4, and class 4, and next question is write vertically 8. Vertically 8. Number 1 question is 6382 plus 465 plus 1496. इसे हम वर्टिकली कॉपी करेंगे, उसके बाद हम इसमें इसकी एडिशन स्टार्ट करेंगे, इनको आपस में ऐड करेंगे. सो फर्स्ट नंबर इज 2, 5, 6. सबसे पहले 2 में 5 को हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे. 2 में जब हमने 5 को प्लस किया तो हो गया आंसर हमारा 7. नाउ 7 में हम 6 को ऐड करेंगे. 7 में जब हमने 6 को ऐड किया तो 6 को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया 13. बट हम पूरा तो नहीं लिख सकते, सो हमने 1 कैरी दे दिया. सो नाउ इसी तरह से हमने 8 में 1 को प्लस किया, हमारे पास हो गया 9. 9 में हमने 6 को प्लस किया, हमारे पास आंसर आया 14. और जब हमने 14 में 9 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 24. 4 हमने नीचे लिख दिया और 2 हमारा कैरी हो गया. इसके बाद 3 में हमने 2 प्लस किया 5. 5 में 4 प्लस किया 9 एंड 9 में 4 प्लस किया, so the answer is 13. 13 में से 3 नीचे आ गया एंड 1 ऊपर कैरी चला गया 6 पे. एंड 6 में जब हमने 1 प्लस किया तो 7 एंड वो लास्ट पे जो 1 है वो प्लस किया, सो आंसर वी गेट 8. सो आवर आंसर इज 8343. इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस फॉलो करेंगे, सॉल्व करेंगे. फर्स्टली कॉपी द क्वेश्चन फ्रॉम योर स्क्रीन, देन सॉल्व इट बाय योर ओन सेल्फ. आफ्टर सॉल्व द प्रॉब्लम, check answer from the screen. इसी तरह से 3 और 4 भी करेंगे. 5 and 6 भी, 7 and 8, 9 and 10. 10 क्वेश्चंस एडिशन के हैं, वर्टिकली 8 करना है आपने. बहुत इजी है, आपने पिछली क्लासेस में किए हुए. डू इट केयरफुल. Neat and clean writing. So the next topic is multiplication. Multiplication
हम सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेबल्स। नंबर 1 is 762 multiplied by 4. As it is, copy the question as it is. Okay, now 2 times 4 is 8. Write it. 6 times 4 is 24. 4 नीचे आ गया, 2 कैरी 7 पे। 7 times 4 is 28. 28 में जब हमने कैरी h की 2h किया, so we get 30. The answer is 3048. इसी तरह से हम नंबर 2, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसके बाद द क्वेश्चन नंबर 6 इज, हमें यहाँ पे डबल डिजिट है, 1 to 5 सिंगल टेबल है, सिंगल टेबल आपने पढ़ना है। उसके बाद नंबर 6 है, वहाँ पर हमने डबल टेबल्स पढ़ने हैं। किस तरह से? 423 मल्टीप्लाई बाय 11। कॉपी द क्वेश्चन। अब हम 11 का टेबल डायरेक्टली रीड नहीं करेंगे, पहले हम एक नंबर लेंगे। 11 में 2 1 होते हैं, तो हम पहले 1 के टेबल पढ़ेंगे। जैसे 3 टाइम 1 इज 3, 2 टाइम 1 इज 2, 4 टाइम 1 इज 4। जिस तरह सिंगल डिजिट करते हैं उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। जब पहले वाले नंबर का जब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम अपने फर्स्ट नंबर के नीचे लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। कौन सा साइन लगाएंगे? मल्टीप्लाई का साइन। तो इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद हम आगे से सॉल्व करेंगे। जैसे कि 1 टाइम 3 इज 3, 2 टाइम 1 इज 2, 4 टाइम 1 इज 4। इसके बाद जब हम दोनों डिजिट्स के टेबल रीड कर लेंगे, टेबल पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, तो दोनों वैल्यूज़ को हम करेंगे ऐड एक परफेक्ट आंसर लाने के लिए। क्या करेंगे? ऐड, नॉट सब्ट्रैक्ट, ऐड, एडिशन करेंगे। तो 3 के नीचे तो मल्टीप्लाई था, तो एज इट इज 3 आ गया। 2 में 3 प्लस किया 5, 4 में 2 प्लस किया 6, 4 में 4 वहाँ पे कुछ साइन ऐड करने के लिए, तो हमारा आंसर आ गया 4653। लिसन इट केयरफुली। अगर आपको समझना है, इसको 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट आपको पहले ज़रूरी है कि आपको टेबल्स याद होने चाहिए। इसी तरह से क्लास 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 भी आप सॉल्व करेंगे। Our next topic is copy and subtract. Subtraction, it's so easy work. हमने पहले भी पिछली क्लासेस में बहुत बार किए हुए हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन इज 456 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है हमें 321 में से। 9 में से 1 माइनस किया 8, 5 में से 2 माइनस किया 3, 4 में से 3 माइनस किया 1। सो इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सॉल्व करने हैं। नीट एंड क्लीन राइटिंग एज शोन इन योर स्क्रीन। मेंटेन द पेज by follow the previous instructions. Write blue color for question. Okay. So our next topic is. So our next question is convert m into cm. m यूज होता है मीटर के लिए एंड cm यूज होता है सेंटीमीटर के लिए। सो हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। सो इसका एक की है, हिंट है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल है, बराबर है 100 सेंटीमीटर के। सो द ए इज 44 मीटर्स। हमें 44 मीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज करना है। हमें बताना है कि 44 मीटर्स कितने सेंटीमीटर होते हैं। सो 44 मीटर्स, जब यहाँ पे किलो क्या है हमारे पास, एक हिंट क्या है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। जब हमें 44 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो हम
44 मीटर को 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें पता चल जाएगा कि 44 मीटर्स कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा 100 सेंटीमीटर, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था 44 मीटर्स, उसके बाद हमने इन पर स्टार्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्लास 4 डबल डिजिट है, जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको कि डबल डिजिट किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम एक 4 के टेबल पढ़ेंगे, जिस तरह से 0 टाइम 4 इज़ 0, अगेन 0 टाइम 4 इज़ 0, 1 टाइम 4 इज़ 4। फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम नीचे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। वेरी गुड, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद दोबारा से हम उसी तरह से टेबल लिखेंगे, रीड करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 0 टाइम 4 इज़ 0, 0 टाइम 4 इज़ 0 एंड 1 टाइम 4 इज़ 4। जब हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, एडिशन। एडिशन करने के लिए हमने प्लस का साइन लगाया ना। 0 के नीचे मल्टीप्लाई है तो 0 में अगर कुछ भी प्लस नहीं करेंगे तो हमारा आंसर होगा 0। इसके बाद 0 में 0 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली 0। 4 में 0 प्लस करेंगे हमारा आंसर क्या होगा, 4, और 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो हमारा आंसर होगा 4। सो हमने 44 मीटर्स को जब सेंटीमीटर से कन्वर्ट किया तो हमारे कितने सेंटीमीटर हो गए, 4400 सेंटीमीटर। गेट इट? Okay, practice it again and again and solve the next question by your own self. The next question is, solve it. B 36 meter, C 64 meter, D 16 meter, E 52 meter, F 21 meters, G 69 meters, H 98 meters, R 77 meters, and J 20 meters. Do it by your own self, and after solve it, check the answer from your screen. So class 4, the video is over. Do it one page daily. Practice it by your own self. Stay tuned. Allah Hafiz.